So, good morning, everyone. How are you? Hope everyone is doing well. Today, I'm starting a very different subject, that is financial management. This subject I have taken up because it is generally for all BBA, BBA, BCom, and MBA, as well as MCom, and as well as BCom honors students study. This subject, I'm starting from the very basic things, and you will enjoy this subject because I've taken various good examples, as well as I'll teach you in certain ways which will you will find this subject more creative and fun loving. Okay, so let's begin with this. In this unit 1, I'll take up the nature of financial management, scope of financial management, objectives of financial management, then agency problem. In some of the courses, agency problem is not there. Investment, speculation, gambling differences, relationship of financial management with other disciplines. So, first three topics are the common topics which will be in every course, but other three vary upon the different boards. Like some boards have different, and some universities have different topics, and some cover different topics, right? So, but you will gather all the data over here. Okay. So first I start with the very first thing. What is financial management? That means what is finance, what is financial management, and what other types of finance function. Because financial management cannot be understood without the finance function. So that is why I have taken up first of all financial function. Now, before starting this particular thing, I want to just ask you. Suppose you have money in your closet. आपकी क्लोजेट में कुछ पैसे रखे हैं, ठीक है? और वो पैसे फंड है कि मनी है? that that amount of money, that amount which is in your closet, that is a money. If it is put to use, it becomes a fund. It becomes a fund. तब वो फंड बनता है. जब वो ग्रो करेगा, जब कोई इन्वेस्ट होगा, तो वो फंड बन जाता है. ठीक है. दिस इज द मेजर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. दूसरी चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर वर्ड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. इसको पढ़ते हैं. फाइनेंस इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी. हमने बोला कि फाइनेंस आर्ट है और साइंस है मैनेजिंग करने में, मनी को मैनेज करने के लिए. सो फाइनेंस इज एन आर्ट. सी आपने देखा होगा डिफरेंट फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं. सब एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपर्टाइज, ओन स्किल्स एंड ओन एक्सपीरियंसेस टू मैनेज एंड हैंडल मनी, टू रेज मनी, राइट? इट इज अ मोर एनालिटिकल फंक्शन. And science क्यों है? Because it is based on laws of statistics and mathematics. Okay, because it science क्या होती है? Defined rules and regulations and formats and experiments which have been performed to derive the laws. Similarly, over here, in finance function, we have certain rules and regulations and formats and procedures to मैनेज आर फंड्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एफडी ओपन करानी है अपने बैंक अकाउंट में, उसका एक सर्टेन प्रोसीजर होता है, राइट? सपोज यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है शेयर्स ट्रेडिंग के लिए, राइट? This is called art and science of managing money, and it is varies from person to person, from business to business, right? So first important thing is finance is an art and science of managing money. Second thing is financial function basically includes financial assets, financial instruments, and financial services. Basically, they are one and the same thing. In a very small difference is there. What is a financial asset? First of all, I must tell you this. ठीक है. सपोज आपने बैंक में कुछ पैसे रखवा दिए, ठीक है? आपने कहा मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा. सपोज 10 लाख रुपीज आपने बैंक में एफडी करवा दी, राइट? अब आपको 10 ईयर्स के बाद, या सपोज 5 ईयर्स के बाद आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा विद इंटरेस्ट रेट ऑफ लेट्स से 6%. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स यू विल गेट द मेच्योरिटी अमाउंट, राइट? अब दिस एफडी इज योर फाइनेंशियल एसेट. इट इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. व्हाई? बिकॉज दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स will provide you with a liquid asset. Liquid asset means they are the liquid assets for which the person can have an ownership right at the end of the contractual claim. What does it mean? कि जब वो क्लेम खत्म होगा, जब अमाउंट मेच्योरिटी का पीरियड खत्म होगा, तब आपको उसका अमाउंट मिलेगा. ठीक है. और इसमें आपको ओनरशिप राइट भी, आपकी ओनरशिप वैल्यू इसमें है ही कि आपका पैसा है, राइट? सो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल सर्विस का मतलब क्या होता है? जो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको कौन देता है? जो स्टॉक एक्सचेंजेस में आप पैसे डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, बॉन्ड्स में डालते हैं, तो ये आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. इसके थ्रू अपने पैसे को आप ग्रो कर सकते हो और
एक्सपेंड कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? बिकॉज सी we don't want to stuck over here, we have to grow our money, we have to make it compounded, grow it compounded, okay? We have to grow it, multiply our money. So that is why financial services मदद करती हैं, आपको हेल्प करती हैं to grow our money. Financial instrument, I tell you once again, it is a financial asset होती हैं ये हमारे सारे, which provide you the ownership value at the end of the contractual क्लेम. जब आपका अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी पीरियड खत्म होता है, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिलता है जो आपका पैसा होता है, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर कम्स इज कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. ऑब्वियसली फाइनेंस हर फील्ड में है, बिना फाइनेंस के आप कहीं पर भी अपना कुछ भी नहीं कर सकते. फाइनेंस फंक्शन है क्योंकि फाइनेंस फंक्शन हर चीज में अवेलेबल है. आप देख लीजिए, इन्वेस्टिंग करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे, यू हैव टू यूज फंड्स. किसी आप बोरो कर रहे हो फंड्स, राइट? किसी को आप लैंडिंग करो, किसी को उधार में दे रहा है, बिजनेस इज लैंडिंग मनी टू थर्ड पार्टीज. बजटिंग, यू हैव टू प्रिपेयर द बजट्स, हाउ मच टू स्पेंड, हाउ मच टू सेव करना. फोरकास्टिंग मतलब एंटिसिपेटिंग हाउ मच फंड्स इज रिक्वायर्ड बाय मी टू ग्रो माय बिजनेस, राइट? ये सब आपका किस में आता है? फाइनेंस फंक्शन में. फाइनेंस फंक्शन बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पर भी होता है, बिजनेसेस लेवल पर भी होता है, एंड गवर्नमेंट लेवल पर भी होता है. विल डिस्कस इट. 5 C's ऑफ फाइनेंसिंग. 5 C's ऑफ फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है? करेक्टर, कैपेसिटी, कंट्रोल, capital, collateral and conditions. See, what these are the 5 C's of financing. जैसे आप कहीं से लोन लेते हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है, राइट? आपको कैपिटल रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है, उसे कोलेट्रल बोलते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट हमारा आता है कंडीशंस. सर्टेन कंडीशंस अप्लाई व्हेन यू टेक द लोन और यू लैंड मनी टू अदर्स. they put certain conditions, right? Then capacity, and capacity is what, how much of the capacity to lend money, how much of the capacity to borrow money. कितना आप कैपेसिटी रखते हो, कितनी इक्विटी आप दे सकते हो, कितना डेट आप उधार में ले सकते हो, राइट? Definition में you can just learn business finance is that activity concerned with planning, raising, controlling and administering the funds used in the business. Understood? What does it mean? That means, first of all, I say, when I say financial management, it means managing the financial resources of the organization, right? Now, finance basically deals with planning how much of the funds I require to grow my business. Raising, from where should I raise my funds? Controlling, that means it should not be wasted. There should be efficient utilization of my resources. Administering, overall regulation, overall controlling of the funds of my business. Next, now I told you there are 3 types of finance: corporate finance, personal finance and public finance. I told you just now, finance can be on the individual level, corporate level and finance level. So corporate finance basically मतलब हमारा होता है, जैसे आप कंपनीज की बात करते हो, कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? उनके एसेट्स, उनकी लायबिलिटीज, उनके रेवेन्यूज कितने और उनके डेट्स कितने. डेट मीन्स कितने उधार पे वो सामान लेते हैं, दैट मीन्स कितनी ज्यादा उनकी लायबिलिटीज हैं. सपोज इफ यू टेक लॉन्ग टर्म लोन्स, okay, and with a very high interest, how will you repay them if the business is not earning profits? So इसके लिए वो बताते हैं कि we should manage the revenues and debts. बहुत ज्यादा अगर आप उधार ले लेगी कंपनीज अगर बहुत ज्यादा लोन ले लेते हैं तो क्या होता है? They will not be able to pay at a later date, and ultimately the company will go bankrupt or will become insolvent, right? इसके लिए वो बताते हैं कि you should manage the revenues and debts of the business. So समझ आ गया? In the corporate finance, we manage basically the assets and liabilities as well as the revenues and the debts of the business. Clear है? So ये हमारा होता है public finance. ठीक है? Second हमारे पास आता है, sorry, ये होता है हमारा corporate finance, which is on the corporate level. ठीक है? Second हमारे पास आता है personal finance. So this is very very interesting. On an individual level, what all activities you do on the individual level, what all activities you do on your side, what all activities you do individual level पे आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हो? अपने आप बजट बनाते हो घर का, ठीक है? आप अपनी सैलरीज का बजट बनाते हो, कितना मुझे स्पेंड करना है, कितना मुझे सेव करना है. इंश्योरेंस लेते हो आप, इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी लेते हो, राइट? फैमिली का भी लेते हो. मॉर्टेक प्लानिंग करते हो, राइट? हाउ मच टू टेक ऑन लोन, for how much period.
सेविंग्स आप करते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग आपको करनी पड़ती है, स्टडी ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, व्हेन यू इन्वेस्ट इन सर्टेन स्टॉक्स और बॉन्ड्स, सपोज आपने इंडिविजुअल कोई फंड लिया, आपने सपोज कोटक इक्विटी फंड में आपने इन्वेस्ट करा, तो you always check, you always do the security analysis कि whether this fund is or this securities in which I am investing is suitable for my portfolio or not, right? Third is behavioral finance. This finance is basically a little bit difficult for you to understand right now, but as you move further I'll explain this meaning. Okay, like now you understood on the individual level you deal with these particular things of personal finance. Next we have is public finance. Now this is again very important thing. Public finance मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स है, जो गवर्नमेंट करती है टू प्रमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर एंड पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इसमें आपकी फिस्कल पॉलिसीज आ गई, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज आ गई, टैक्सेशन पॉलिसीज, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है, बजट्स जो गवर्नमेंट बनाती है ना, हियर बजटिंग इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल लेवल, फॉर द गवर्नमेंट लेवल। जो डेट के इश्यूज गवर्नमेंट के होते हैं, जो गवर्नमेंट की सारी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स सिस्टम इन्वॉल्व करती है, वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट करती है टू रेगुलेट द फंड्स एंड द फाइनेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस, राइट? अंडरस्टूड? डील्स विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट expenditure. Public finance deals with government revenue and government expenditure. Public finance deals with this, then private finance deals with your corporate sector, that is assets and liabilities, revenues and debts. And last is your personal finance, which is on the individual level. That means on the basis of budgeting, forecasting, insurance, mortgage planning, retirement planning, security analysis, and so on. Three types of finance we have is, so finance means all the activities it deals with the management, generation, flow and स्टडी ऑफ मनी, जिसमें हमारा जो मनी की जब स्टडी करते हैं कि हमारा फ्लो कहाँ जा रहा है, मनी कहाँ जा रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे हम प्रिक्योर कर रहे हैं मनी को, कहाँ से मनी हम लेकर आ रहे हैं, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फंड, मैनेजमेंट एंड मनी, मैनेजमेंट ऑफ फंड फ्लो एंड जनरेशन ऑफ मनी। पर्सनल में आपने देखा सेविंग, इन्वेस्टिंग, इंडिविजुअल मनी कैसे होता है, कॉर्पोरेट में आपने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, पब्लिक में आपने देखा गवर्नमेंट लेवल पर होता है, राइट? नाउ वी कम टू द बेसिक थिंग, व्हाट आर द बेसिक टू मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंस फंक्शन। अब हमने इतना सारी चीजें फाइनेंस फंक्शन के बारे में पढ़ी, तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंस फंक्शन किन दो चीजों से रिलेटेड है। व्हाट आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। एस्पेक्ट्स मतलब क्या इसकी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसको फाइनेंस फंक्शन बताता है। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन। ठीक है, what are the basic aspects? First, there are two aspects only, procurement of funds. मैंने आपको पहले बताया था, सपोज अगर मुझे बिजनेस करना है, अगर मुझे अभी बिजनेस करना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे पैसे चाहिए होंगे, सिंपल, तो मुझे प्रिक्योर करने पड़ेंगे फंड्स। कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, फ्रॉम वेयर शुड आई प्रिक्योर माई फंड्स, आई डोंट हैव एनफ मनी विद मी, आई नीड मनी, सो फ्रॉम वेयर शुड आई प्रिक्योर माई फंड्स, दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। अब मेरे पास एक बार फंड्स आ गए, व्हाट इज माई नेक्स्ट स्टेप, how should I effectively and efficiently and judiciously utilize my money without any kind of wastages? तो ये मेरा सेकंड हो गया, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन बिजनेस कंसर्न्स, राइट? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन तरीके से हम अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स के थ्रू, डेब्ट कैपिटल के थ्रू, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू। अभी डिपेंड करता है कि कंपनी इक्विटी के थ्रू पैसा रेज करेगी या डेट के थ्रू करेगी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू करेगी, राइट? इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि आप जब आप कंपनी से शेयर्स खरीदते हो, जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, और कंपनी, सपोज एक कंपनी है ए, ठीक है, एक कंपनी ए है, उसके जो शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, लेट्स से बी सी डी है, ठीक है, उन तीनों शेयर होल्डर्स को कंपनी को एक ओनरशिप स्टेक देना पड़ता है कंपनी के अंदर। The company has to provide them an ownership stake in the business, that whatever the profits and losses will be incurred in the business, they will be bearing it. Okay, उनको प्रॉफिट्स का भी हिस्सा मिलेगा और लॉसेस भी उनको बेयर करने पड़ेंगे, राइट? मतलब उनको सम परसेंटेज ऑफ ओनरशिप स्टेक देना पड़ता है, एंड इन रिटर्न दे ऑल थ्री इन्वेस्टर्स विल प्रोवाइड द कैपिटल टू द कंपनी। ठीक है, दूसरी चीज है डेट।
डेट में क्या होता है कि आप किसी बैंक से पैसे बोरो कर लो, किसी से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो कर लो, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप उसे लौटा दो, ठीक है। इसमें आपको ओनरशिप स्टेक नहीं देना पड़ता, बट लेकिन हर साल आपको मंथली या आपको ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ती है, राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि these shareholders do not have the voting rights. Okay, they do not. The company does not have to provide any kind of ownership stake in the business. They only just have to give the fixed dividend to the preference shareholders. ठीक है। अब इन तीनों के बारे में पढ़ के कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे कितनी इक्विटी कैपिटल रेज करनी है, कितनी डेट कैपिटल रेज करनी है और कितनी प्रेफरेंस कैपिटल रेज करनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कंपनी को लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोई भी 3 तरीके आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, डेट कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इसके हिसाब से आप देख सकते हो आपको किस परसेंटेज, किस प्रोपोर्शन में आपको कैपिटल रेज करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ से रेज करनी है, ठीक है। वो हमें समझ में आ गया। हमें 3 सोर्सेज हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस कंसर्न्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द बिजनेस कंसर्न्स। इसमें आपका ये वर्ड आ जाता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब आगे के चैप्टर्स में हम करेंगे, बट अभी आप इतना समझ लो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेट, एक साइड आपका डेट है, एक साइड आपका इक्विटी है। कहते हैं ना, जैसे कि एक पूरी कंपनी को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, एक में तो डी है, एक में ई है, आधा डेट आधा इक्विटी। तो आपको जब सपोज आपने 50% रेज किया मनी थ्रू इक्विटी, 50% आपने डेट से रेज कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। सपोज आपने 60% इक्विटी से रेज कर लिया और 40% डेट से, तो भी आपका ये ऑप्टिमम हो गया, राइट। बट अगर मैं 70% पैसे उधार पे लूं, 70% डेट लूं और 30% इक्विटी, क्या ये आपका बैलेंस्ड इक्विटी स्ट्रक्चर होगा? नहीं। समझ आया? सो इसको हम क्या बोलते हैं, देयर शुड बी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप अपनी इक्विटी को डायल्यूट करोगे, उतना ज्यादा आपको थर्ड पार्टी को अपना ओनरशिप इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब अपना ओनरशिप इंटरेस्ट आपने एक बार दे दिया, तो क्या होगा, आपकी सारी वोटिंग राइट्स, आपकी डिसीजन पावर चली जाएगी, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर द कंपनी ओनर, राइट। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, बैलेंस रखते हैं कि ना तो ज्यादा डेट होना चाहिए, ना ज्यादा इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लास्ट जो हमारा सबसे मेन चीज थी, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, मतलब कितने मुझे पैसों की जरूरत है। एस्टिमेशन मींस एंटीसिपेट करना है कितने पैसों की जरूरत है। ऐसे आप घर में सपोज आपको कुछ लेकर आना है, तो आप ये एस्टिमेट लगाते हो ये सामान कितने का आएगा, राइट। इन द बिजनेस ऑल्सो, इफ आई वॉन्ट दैट दीज एसेट्स मस्ट बी परचेज्ड, और मेरी बिजनेस की ग्रोथ के लिए मुझे इतना सामान चाहिए, तो आप ये सोचते हो ना कि आई हैव टू एंटीसिपेट हाउ मच अमाउंट आई नीड, राइट। देन acquisition to acquire those funds either through debt, equity or preference share capital. Then you have to finance them, उसको फिर रेज करना पड़ता है। आपने सोच लिया एक बार कि I have to procure money, तो रेज करो। You have to invite applications for subscribers, ठीक है। You have to subscribe the applications, give provide allotments to the shares to the shareholders, right. Then you have to manage all the financial, now to control all the financial resources of the organization. So basically estimating, anticipating, acquiring, financing and managing the financial resources of an organization in an efficient manner. It deals with anticipating all the financial requirements. पहले आपने anticipate कर लिया कितना पैसे चाहिए, फिर आपने उसको procure कर लिया और फिर आपने उसको effectively utilize कर लिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जब आप सोचो, जब आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया, तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी ही घटेगी? बढ़ेगी। दैट मीन्स इट विल हेल्प यू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ तो वैसे ही बढ़ेगी, बिकॉज शेयर होल्डर्स हैव द शेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट। अगर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ेगी, राइट। So this concept is again clear. So financial management is finance and management is made of 2 words, finance and management. Finance is an art and science of managing money. Finance is the lifeblood of business. Finance is basically dealing with investing, budgeting, uh, uh, forecasting, saving and planning. And management is applying all the management principles
to the financial resources and financial operations of the business in a very effective way. हम optimum capital structure choose करेंगे और फिर हम इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करेंगे.